guys, welcome back to Multi-Skill Education channel by Muskan Gupta. In today's video, we are going to discuss about the different formats of the IELTS examination and what are the significance of them. How you should choose whether you are whether you will be giving the paper-based exam or whether you will be giving the online-based exam. We'll discuss the pros and cons of each of these type, and at the end you can decide which section is best for you, like which type is best for you. And at the end of this video there is one bonus tip, or there is one tip which will be very helpful for you all, so don't skip this video and see it till the end. Now let's, without any time waste, let's just jump into our main topic. So IELTS examination, as we all know, is an exam which mainly tests your English proficiency exam. The significance of this exam is that most of the universities, if you are applying for the foreign universities, they demand this examination to test your English proficiency skills, whether you will be able to adjust in their country or not, or whether you will be able to understand what the teachers and lecturers will be saying during your classes. Okay, so if this mainly checks your the capability of how fast and how good you can speak, write, lead, and all of these things in English. So this section mainly occurs in the 4 patterns as we have discussed: speaking, listening, reading, and the writing. And this will be our pattern of proceeding further with the video. Okay, we'll be discussing each and every section, उसमें क्या-क्या pros and cons है, and इन दोनों formats में हमें क्या difference देखने मिल सकता है हर section में. Okay, so first thing is that if you are giving an online based examination, let's first चीज जो होती है, that will be our speaking section. The one and most important thing is that you need to score equally good marks in all of your sections. Most people think that हमें बाहर जाकर बोलना सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है. सो हमारी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए. लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग अगर अच्छी नहीं भी हो तो भी कोई बात नहीं है, चलेगा. नो, ऐसा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा. इट वोंट वर्क, बिकॉज जो आपकी आइल्स का फाइनल जो एग्जामिनेशन कार्ड होगा, ठीक है, जो आपका फाइनल होगा, दैट विल बी द क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल ऑफ दीज 4 सेक्शंस. चारों सेक्शंस का क्यूमुलेटिव होगा. तो चारों सेक्शंस के क्यूमुलेटिव में अगर यू हैव स्कोर्ड गुड इन वन एंड लो इन दी ऑल ऑफ दी अदर 3, सो यू कैन एस्टिमेट कि आपका जो ओवरऑल स्कोर है आइल्स का वो कहाँ पर जाएगा. That will be also low, and low exams या low, हर एक each and every university has their own cutoffs, ठीक है, जिसके बेस पर IELTS के लिए भी there is a cutoff, GRE एग्जाम के लिए भी there is a cutoff. So if you want guys want to have a discussion on the GRE and what you expect and how to score good in that, so you can mention why in the comment section and we can make a separate video regarding this. Okay, so in this first thing was ki IELTS ka significance we have discussed. Now IELTS examination mainly comes in the 2 formats, and there are 4 sections. The speaking section is pretends to be most important, but all of the 4 sections are equally important. Okay, so we'll be discussing first speaking section mein what are the differences that you can see in the paper based and the online based exam. In an online based, you are expected to have your speaking section examination 2 to 3 days before your main day. Now this main day consists of all of the 3 sections का exam, listening, reading and writing. So main day से पहले आपका speaking का exam हो सकता है if you are giving it online. तो ये आप expect कर सकते हो. Whereas अगर आप paper based exam देते हो, so आपका यहाँ पर main day के बाद speaking section का एग्जामिनेशन कंडक्ट करा जाएगा. दिस इज द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द स्पीकिंग सेक्शन ऑफ द पेपर बेस्ड एंड द ऑनलाइन बेस्ड. नाउ स्पीकिंग सेक्शन के एग्जाम में जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्या वो भी डिफरेंट होंगे? क्या वो भी मोड्स के अकॉर्डिंग देखे जाएंगे कि हमने कौन सा मोड फिल करा है? सो इस बारे में ऐसा कुछ भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये चीज़ नहीं देखी जाती है. Speaking section exam will be same on all of the levels. If you have filled online or in paper based, this exam won't be affected. It's just the duration of the exam, the venue of that exam, the time of that exam, which will be different if you are giving if you are giving it online based या फिर paper based. So आपका duration अलग अलग हो सकता है, but all of the other things will remain same. Next now comes to our listening section. अगर आप रीडिंग, लिसनिंग एंड ऑल ऑफ दीज में बात करो, आपका मेन डे जो है बोथ ऑफ द एग्जाम्स के अंदर, योर फर्स्ट सेक्शन विच यू शुड अटेम्प्ट और विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट, ठीक है, विच यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट विल बी
लिसनिंग वन। सो सबसे पहले आप लिसनिंग सेक्शन को ही अटेम्प्ट करोगे। लिसनिंग सेक्शन में ही सबसे ज़्यादा डिफरेंस है दोनों फॉर्मेट्स के अंदर जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सो हम इस सेक्शन पर थोड़ा सा डिटेलिंग में बात करेंगे, ओके। और इसके प्रोसीड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लिसनिंग सेक्शन में हमें हेडफोन्स दिए जाते हैं एंड हम वहाँ से रिकॉर्डिंग सुनते हैं क्योंकि हमारी लिसनिंग का एग्जाम है। एंड देन जो भी क्वेश्चन दे रखे होते हैं वी आंसर देम अकॉर्डिंगली। नाउ जो भी हमको सेक्शंस दिए गए हैं, ठीक है ना, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं in an online based you will be given the question simultaneously. You will be allotted with 2 to 3 minutes to check your each and every section के questions and answers, ठीक है, whether you have answered them correct, whether is there anything that you had missed, is there any spelling mistakes that you can check for. So these all are the things that you can do in that extra 2 to 3 minutes which will be allotted to you after the end of every section if you are giving it in an online based format. इन एन ऑफलाइन बेस्ड फॉर्मेट और इन अ पेपर बेस्ड फॉर्मेट में क्या होता है, ऑल ऑफ द रिकॉर्डिंग्स विल साइमल्टेनियसली प्ले एट वंस विद अ गैप ऑफ 30 to 40 सेकेंड्स। हर सेक्शन के बाद यू विल बी अलॉटेड विद 30 to 40 seconds टू चेक फॉर दैट सेक्शन। नाउ इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू यूटिलाइज दैट। नाउ एट द एंड ऑफ ऑल ऑफ द 4 वीडियोज, ऑल ऑफ द 4 ऑडियोज के बाद में यू विल बी अलॉटेड विद एक्स्ट्रा 10 minutes टू कंफर्म योर आंसर्स whether you have answered them correct. You can now in that 10-minute ka duration you can now just pair your answers, write it or any other thing that you want to do. So these are the 10 minutes that are allotted to you extra. Now most of the students or most of the aspirants will think हमें ऑनलाइन में टाइम कम मिलता है, ऑफलाइन में ज़्यादा मिलता है, ऑफलाइन में बाद में एक्स्ट्रा 10 minutes मिलते हैं, ऑनलाइन में नहीं मिलते। सो हम तो किस में जाना चाहिए, हम फिर जाने चाहिए पेपर बेस्ड के अंदर, ठीक है। बट ऐसा कुछ नहीं है। नाउ अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंस यहाँ पर क्या आ जाता है, अगर आपने यहाँ पर आप खुद से मन से तो आंसर्स नहीं बना रहे, ना ही आपकी नॉलेज चेक कर रहे कि आपने कितना याद कर रखा है। ये एग्जाम क्या हो रहा है कि आपने सुना और सुनकर आप कैसे आंसर दे रहे हो, कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। सो उस जो एक्स्ट्रा आपको जो 10 minutes मिले हैं, आपको अगर एक आंसर में डाउट भी है कि ये मेरा आंसर गलत हो सकता है, तो क्या आप उसे सही करने के लिए क्या क्या चीज़ कर सकते हो। अगर आपने उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर रखी है तो आप उसकी स्पेलिंग ठीक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने वर्ड्स में आगे पीछे कर दिए वर्ड्स को, आप वो ठीक कर सकते हो। बट क्या आप उस गलत आंसर को, अगर आपने गलत वर्ड ही लिख दिया है, क्या आप उसे सही बता सकते हो? विल इट बी रियली पॉसिबल फॉर यू? Will you be able to play that whole recording of 5 to 6 minutes in your mind in that 10-minute का duration? क्या आप वो पूरी रिकॉर्डिंग चला पाओगे उस टाइम पर अपने दिमाग में? क्योंकि that recording will be played only once. So now आपको खुद recall करना है. So would you be able to recall all of that का audio का part in your mind ताकि आप उसे correct कर सको? No. Actually and practically this is not possible. सो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपको वो एक्स्ट्रा 10 minutes है, दैट्स ओनली फॉर कि आप यहाँ पर सिर्फ फेयर कर सकते हो या स्पेलिंग मिस्टेक्स चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ तो आप जो आपको 30-40 seconds दिए गए हैं, आप उसमें भी अकम्प्लिश कर सकते हो, ठीक है ना। सो ये 10 minutes का अकॉर्डिंग टू मी इज देयर इज नो स्पेशल सिग्निफिकेंस जो आप इसमें लाइक प्रोडक्टिविटी यहाँ पर नहीं आती है, या आपको कुछ ऐसा नहीं है कुछ फ़ायदा मिल रहा है इन 10 minutes का कि आप इसमें कुछ कर सको। मोस्ट ऑफ जो थिंग्स है, हम पेपर देने जा रहे हैं तो हम पेपर में क्या सोचते हैं, वी थिंक टू स्कोर बेटर मार्क्स। बट हियर लाइक बेटर मार्क्स को और बढ़ाने के लिए यू कैन डू योर पॉइंट लाइक 2 to 3% एफर्ट, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। सो इसलिए ये एक्स्ट्रा जो 10 minutes मिलते हैं अकॉर्डिंग टू मी इट्स ऑफ लाइक नो स्पेसिफिक यूज नहीं है इनका। वेयर एज अगर आप ऑनलाइन में आते हो, ऑनलाइन के अंदर ईच एंड एवरी सेक्शन के बाद यू विल बी अलॉटेड विद एक्स्ट्रा 2 to 3 minutes वेर यू कैन एक्चुअली चेक योर आंसर्स, रिव्यू देम, चेंज देम, एंड उस 2-3 मिनट में जो आपने चीज़ ताज़ी सुनी है, अभी सुनी है, विच यू हैव जस्ट लिसन, यू कैन रिकॉल दैट इन दैट 2 to 3 minutes. सो यहाँ पर अगर आपको अपनी गलती पता चल गई है और आपको आंसर कि ये मैंने गलत लिख दिया है एंड यू नीड टू करेक्ट इट, हेयर इट इज़ पॉसिबल। वेराज वहाँ पर तो आपको 30 to 40 seconds मिलेंगे सिर्फ। सो उसमें आप सिर्फ चेक ही तो कर सकते हो, यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉल अच्छा रिकॉर्डिंग में इसके बाद क्या हुआ था एंड चेंज योर आंसर्स।
सो दिस इज द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस, ठीक है, बिटवीन एन ऑनलाइन बेस्ड और पेपर बेस्ड. सो नाउ इट्स अप टू यू इन विच फॉर्मेट यू नीड टू गिव इट. बट सिर्फ यही तो आपसे नहीं पूछे जाने वाले हैं ना मेन डे पर. आप सिर्फ लिसनिंग तो देने नहीं जाओगे, अदर 2 फॉर्मेट्स भी बाकी हैं, ठीक है. सो नेक्स्ट कम्स अवर रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन में ऑनलाइन और पेपर बेस्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है. आपको बिल्कुल भी डिफरेंस इसके अंदर, अगर मैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो आपको देखने को नहीं मिलेगा. कहाँ डिफरेंस आ सकता है और रीडिंग में ऑनलाइन पर और पेपर बेस्ड में क्या डिफरेंस है और आपके लिए ये कौन सा बेटर रहेगा, इसको हम अच्छे से नेक्स्ट अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे. विल बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो ऑन इट कि रीडिंग के अंदर इन विच सेक्शन यू शुड ऑप्ट, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स और प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं फॉर ऑप्टिंग इट फॉर पेपर बेस्ड या फिर ऑनलाइन बेस्ड के अंदर, या ऑनलाइन मोड और ऑफलाइन मोड में यहाँ पर क्या डिफरेंस आ जाता है. सो वील बी डिस्कसिंग इट इन अ सेपरेट वीडियो, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है. आप दोनों में 3-3 पैसेजेस देखोगे और आपको टाइम भी सेम मिलेगा, ठीक है. बट अटेम्प्ट करते वक्त क्या डिफरेंस आता है वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, या फिर इस पे अलग से वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट कम्स अवर राइटिंग सेक्शन. राइटिंग सेक्शन में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस है. और अगर आप धीरे धीरे आप अभी हम इसके प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, सो यू विल बी एबल टू मेक आउट इन विच कैटेगरी यू लाइज एंड विच मोड इज बेस्ट फॉर यू, ठीक है ना. सो इन द राइटिंग सेक्शन there are mainly 2 questions. One is to be you should write 150 words. Other is to be you should write 200 to 250 words in that. This is the minimum criteria, point to be noted. This is the minimum word length which you are expected to write. You can write more than that. You will be deducted no marks. Like schools में होता है, colleges में होता है, if you write ज़्यादा लिख दोगे तो we'll deduct or we'll not read that. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. इफ़ यू आर राइटिंग इट एक्स्ट्रा यू विल बी कंसीडरिंग प्रॉपरली, आप उसमें प्रॉपरली देखे जाओगे. और अगर आपने अच्छा लिखा है सो इट ऑल्सो इंक्रीजेज योर चांसेस फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. नाउ जो मेन डिफरेंस है यहाँ पर आता है, पेपर बेस्ड के अंदर यू विल बी गिवन ऑन अ शीट, 1 sheet 2 sheet मैक्सिमम फॉर राइटिंग इट, एंड ऑन दैट शीट ओनली यू शुड राइट. नाउ अगर आपने बोर्ड्स दिए हैं ईच एंड एवरीथिंग, और इस टाइप के एग्जाम में भी वेयर यू आर पेइंग सो मच ऑफ फीस, यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट विदाउट एनी कटिंग्स सो दैट इट मेक्स योर रीडिंग मोर क्लियर टू द एग्जामिनर, सो दैट इट प्रेजेंट्स यू वेल, ठीक है. सो आपको कटिंग्स नहीं चाहिए होती हैं, आपको अच्छा लिखना होता है. इवन इफ यू आर ऑन अ पेपर बेस्ड, सो यू ऑलवेज ट्राई टू हाईलाइट वेयर यू वॉन्ट द एग्जामिनर टू बी मोर फोकस्ड अपॉन. सो दीज आर ऑल ऑफ द थिंग्स इन विच यू स्पेंड मोर ऑफ द टाइम, ठीक है. और यहाँ पर आप कटिंग नहीं कर सकते. सो इफ़ यू आर परफेक्ट ऑन राइटिंग व्हाट यू थिंक, और आपके लिए वो चीज़ एकदम सही होगी, ठीक है, सो आप उसको लिखो, आपके लिए फिर पेपर बेस्ड इज़ वेरी गुड. बट इफ़ यू आर अ टाइप ऑफ पर्सन वेयर you think something, you write, and then your thoughts change and you realize that this line will not be fitted on my what am I writing, ये line जो मैं लिख रही हूँ वहाँ पर फिट नहीं होगी, ठीक है, या फिट नहीं हो सकती है. यहाँ फिर मैंने यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर कर दी है. सो इन दैट केसेस आपको उसे करेक्ट तो करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स एन एग्जामिनेशन एंड यू कांट सबमिट रॉन्ग आंसर्स इवन इफ यू हैड रिकॉग्नाइज्ड इट. वो होता है ना आंखों देखी मक्खी नहीं निकली जाती. इट्स अ फ्रेज इन हिंदी, ठीक है. इसका मतलब ये है कि अगर आपने कुछ खुद आपको पता चल गया है कि इसके अंदर ऐसा है तो आप उससे सहन नहीं कर सकते. पीछे से अगर आपको नहीं पता चला है तो उसमें कुछ भी चलता रहे, आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ता. सो सेम थिंग है, अगर आपको खुद ही अपनी गलती दिख गई है कि आपने लिखा है और आपने गलती कर दी है, सो यू ऑलवेज ट्राई टू मेक योर बेटर अटेम्प्ट, बेस्ट अटेम्प्ट, कि मैं उसे करेक्ट कर दूँ ताकि मुझे अच्छे नंबर मिले. अब अगर आप पेपर बेस्ड के अंदर करेक्ट करने जाओगे सो आप कटिंग्स करोगे एंड कटिंग्स विल रिड्यूस योर मार्क्स, ठीक है. वेयर एज इफ यू आर गिविंग इट एन ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम यू कैन जस्ट प्रेस द बैक स्पेस की एंड दैट विल बी रेज्ड, ठीक है. सो यहाँ पर आपको कटिंग नहीं करनी पड़ी. यहाँ पर आपने कितनी बार एक सेंटेंस को कितनी बार सोचा और कितनी बार लिखा और कितनी बार हटाया ये भी किसी को पता नहीं चला, ठीक है. वेयर एज पेपर बेस्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है. एक बार लिख दिया तो वो पत्थर की लकीर बन जाती है. पेपर बेस्ड के अंदर तो उसे अगर काटा भी है तो भी सबको पता चल जाता है. सो ये मेन डिफरेंस होता है बिटवीन राइटिंग सेक्शंस के अंदर. अब ये तो थी लिखने की बात. टाइम आपको दोनों फॉर्मेट्स में सेम मिला है. अब आप उसे यूटिलाइज कैसे करोगे.
वो भी बात है, उसको भी हम अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो मेन डिफरेंसेस थे, ठीक है, जो मेन एक्सट्रैक्शन था, जो होना चाहिए था इसके अंदर, या जो चीज़ें आप फर्स्ट टाइम पर ही ऑब्जर्व कर लोगे बिटवीन एन पेपर बेस्ड एंड एन ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन के अंदर, वो चीज़ें तो हमने क्लियर कर ली। पर अटेम्प्ट करते टाइम आपको क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, या आप कैसे गुड एक्सेल कर सकते हो, वील डिस्कस राइटिंग सेक्शन के लिए भी इन अ सेपरेट वीडियो, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैड कवर्ड ऑल ऑफ द 4 sections of the IELTS examination and listed their pros and cons for an online based and a paper based exam. So it totally depends on you what is your choice. And one more difference between them is that what in an online based you can expect your results to be out in 3 to 5 business days, whereas on a paper based or an offline mode exam you are expected to at least wait for a week or 13 days, ठीक है, to 13 business days to get your result. So यहाँ पर भी थोड़ा सा फर्क आ जाता है that if you are giving it on an urgent basis, ठीक है, so आपको रिजल्ट भी जल्दी चाहिए, so in that case you can opt for an online based exam. Whereas अगर आपको ऐसा कुछ भी नहीं है, you have ample of time, you can then give your paper based exam इन सारे पानम्स के क्राइटेरिया पर जो भी अभी हमने डिस्कस करे। सो इन सब के बेसिस पर यू कैन चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। द अदर मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज आइल्स का अगर आप एग्जाम बुक करने जाओगे यू विल डेफिनेटली गो ऑन देयर वेबसाइट। नाउ ऑन दैट वेबसाइट व्हाट यू थिंक विल ऑब्जर्व, जो कि मैं आपको बता देती हूँ एंड दैट यू विल सी ऑल्सो। ऑनलाइन के अंदर ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन स्लॉट्स आर विल बी गेट more fastly booked because all people want now their results and everything to be in hurry. So if you are planning to give an online based exam you should register before, like earlier than offline based exam. For an offline अगर आपका let's suppose you are booking for 13 जनवरी का डेट एंड 13 जनवरी की डेट अगर आप ऑफलाइन में बुक करते हो यू कैन बुक इट टिल 1 और 2 को भी आप बुक कर सकते हो, 1 और 2 जनवरी को। बट अगर आप ऑनलाइन देने की सोच रहे हो 13 को then you should book it before 13th of December. अगर आप 13 जनवरी को देने की सोच रहे हो you should book it before 13th of December. This is the criteria. इससे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्लॉट्स जो हैं ऑनलाइन बेस्ड के कितने फुल जाते हैं एंड ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो क्या क्या चैलेंजेस आपको इस टाइम पर फेस करने को मिल सकते हैं। सो दैट इज़ वाई अगर आपको ऑनलाइन देना है यू शुड रजिस्टर फॉर इट अ लिटल अर्ली, ठीक है। लाइक ऑफलाइन बेस में तो आप ऑन डे भी या फिर ऑन डे तो बहुत ज़्यादा हो गया 1 वीक 2 वीक्स पहले भी रजिस्टर कर सकते हो, बट ऑन एन ऑनलाइन बेस फॉर बीइंग अ सेफर साइड you should register a month before so that you get your actual the slots that you had wanted and the date for which you want to give it, like which best suits you. Also one more important thing that you can see here is weekend slots are getting more fastly full because on weekends like most of the working professionals, student professionals, ठीक है, जो students होते हैं जो काम करते हैं और working people भी they are often free at the weekend, so weekend के slots भी बहुत जल्दी बुक हो जाते हैं। ये चीज़ दोनों में कॉमन है, चाहे पेपर बेस्ड दो चाहे ऑफलाइन बेस्ड दो। So these are the main differences that you can see in an online based or offline based exam. Now at the end of this video now you can choose in which format you want to give them. And the bonus tip of this is, like the quick tip which I want to give you for this examination is, do think before giving this exam and practice more and more. Don't rely on whether I am speaking English from class 2nd, so I am good and I can clear or get good scores in my first attempt. ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। Do not ever think about it. Do practice like you are still a learner. आप लर्नर की तरह ही इस एग्ज़ाम को दो, पढ़कर देखकर सीख कर, ठीक है। ये चीज़ मिथ जो है, ये इसे मैं मिथ कहूँगी, दिस मिथ मैंने बहुतों की देखी है बिल्कुल गलत होते हुए, which like the people who are speaking English from class 1 or 2 have still not was not able to clear and get their dream score in IELTS on the first attempt. This has happened with many of the people, ठीक है। सो मैनी पीपल्स के साथ होता है। सो अगर हमने उनसे एक्सपीरियंस नहीं गेन करा तो फिर किससे करा, ठीक है ना। सो जिनके साथ ये हो चुका है वी शुड गेन एक्सपीरियंस फ्रॉम देम। सो डू नॉट थिंक लाइक दैट कि आई एम स्पीकिंग एंड आई एम गुड, आई कैन गिव इट एंड आई कैन क्लियर इट। इस टाइप की मेंटालिटी लेकर डू नॉट एवर गिव एग्जामिनेशन, ठीक है। आइल्स का क्या, किसी भी चीज़ का एग्जाम डू नॉट गिव दिस विद दिस मेंटालिटी, बी प्रिपेयर फॉर इट। लाइक अगर आप
अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, टू चेक इट। चेक करो, कैसे करो, ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है। लिसनिंग के लिए 2-3 लिसनिंग टेस्ट देकर देखो, राइटिंग के लिए देके देखो, रीडिंग के लिए लेके देके देखो, एंड स्पीकिंग के लिए तो आप प्रैक्टिस स्पीकिंग से जितनी ज़्यादा अच्छी से कर सकते हो उतनी करो, ठीक है। सो देकर देखो, अगर आप उसमें भी अच्छा स्कोर कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू हैडंट अटेम्प्टेड इट, यू हैडंट सीड इट, और फर्स्ट टाइम बस वहाँ जाकर एंड यू आर लाइक गिविंग इट, ठीक है। उसका थोड़ा सा उस सेटिंग में अपने आप को डालने की, एडजस्ट करने की कोशिश करो, ताकि आपके लिए वहाँ पर जाकर सारी चीज़ें न्यू ना हो। आप अपना एफर्ट वहाँ एडजस्ट करने में ना लगाकर सिर्फ पेपर पर लगाओ, okay. So this is the awesome bonus tip, and at the end of this we are coming to the end of the video as well. So if you like today's video, then please do like, share and subscribe. Don't forget to stay tuned with the channel Multi-Skill Education, okay, to get more updated, innovative, technological and each of these type की videos, motivational, educational, success related, different exams related and innovative and creative videos. So don't forget to don't forget to like, share and subscribe, and stay tuned with the channel, okay. And share this channel with your with your friends and relatives too, because sharing the education is really a good deed, okay. Don't forget to like, share and subscribe the channel, and stay tuned with Multi-Skill Education channel by Muskan Gupta to get more creative, good and innovative videos. Don't forget to share it with your friends, as sharing the education is really a good deed, okay. And now coming to the end of the video, I would like to say you all stay safe, stay healthy, bye bye, love you all guys.